I remember there is this brand of a skincare company who's very famous to promote fairness. So they got a campaign to me 2 times, and I said no. Yeah, not just for child actors but for generally children. ये नहीं होना चाहिए. Everybody is beautiful, everybody skin tones. बस ज़्यादा icons नहीं है आपके सामने. मेरे डैड हमेशा कहते थे कि no matter what the society is going to tell you, remember that you're beautiful. You have your own beauty. You are your own package. You're going to inspire your set of people. But if you feel like you are in that irreplaceable category, then you either work on something जो आपके पास authentic है, आपका authentic talent या power. Am I single? The nation wants to know. I don't know. It is disheartening. Honestly, it is. But then, just like life, you have to accept it. And if you believe in yourself that you're a good actor, and there are nice roles, and if you love acting, you'll wait out for the next good opportunity or the character. And I would thank my dad क्योंकि मैं बचपन से इस इंडस्ट्री में थी और मैंने पापा को हमेशा देखा है going through all seasons of this industry, and I have also gone through it. I have been rejected. I have been like casted and then अचानक से replaced. All of these things have happened. So I've seen the best and the worst. Then after a point I've also always seen the best. I've also waited out. I've taken breaks in this in my career, and which I've waited for a few years also. So I've learned a lot. I have learned how to wait and how to believe that something good is out there and everything is happening for a reason. And ultimately, yeah, you're a performer. So you have to keep changing characters every time. You can't be stuck on one thing forever. Absolutely. So when it comes to me, लोगों को ऐसा लगता है अरे I don't use that term, but इसके लिए तो easy रहा होगा. But यार, my dad is also an actor. He also goes to auditions. I also go to auditions. So had he maybe if he was a bigger producer, you can get a debut until a point. But after that, you are the one और आपकी credibility, आपका talent ही आपको आगे ले जा सकता है. In my case, I never got a debut myself. 7 साल की उम्र से ऑडिशन देना शुरू किया, 1-2 प्रोजेक्ट्स इधर उधर किए, एंड एट द एज ऑफ 11 मुझे झांसी की रानी मिला. तो आई मेड श्योर कि मैं हमेशा जब भी ऑडिशंस के बारे में सुनती थी मैं वहाँ पहुँच जाती थी. तो कुछ मेहनत का फल मिला मुझे, और उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ ऑडिशनिंग. बट आज भी हर एक्टर को ऑडिशन करना पड़ता है. दैट इज़ द प्रोसेस. और बस दैट इज़ हाउ दिस इंडस्ट्री इज़, एंड इट मेक्स यू हम्बल ऑल्सो. तो पापा के रहने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रोक टोक नहीं थी कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकती. आई फील लाइक जिन लड़कियों को अपने घर पे सपोर्ट नहीं मिलता इस करियर को परस्यू करने के लिए, तो उस मामले में आई बिलीव आई एम लकी बिकॉज माई डैड नोज़. बट अदरवाइज ऐसे कुछ खास मदद नहीं मिलती. You have to make your way out. If you have it, they'll cast you. Why would anybody want to spend on you unless you're not worth it? Yeah. So that is stuck by me, and I feel like which is why अगर मैं अपने पावर में अपने किरदारों के ज़रिए कुछ लोगों को इंस्पायर कर सकूं, भले वो कुछ ही क्यों ना हो, and who are also struggling with the same insecurities that I did once, with the insecurities that I was imposed by the society, which was not there in the initial. I remember there is this brand of a skincare company who's very famous to promote fairness. So they got a campaign to me 2 times, and I said no, I am not going to work with you guys no matter what. But you guys have always promoted a wrong notion, and that impacted my childhood very much, and it has taken me time to work on that. And my film industry, my acting, my projects, and the fame, my fans have helped me feel proud about it, embrace it, and I would want to do that for all the girls. Yeah, there has to be. I feel like लोग समझ जाए कि beauty standards are just fads and are just an overpowering. It's just a concept by an overpowering thought out there. Yeah, that's all. Absolutely.
देखो, आई फील लाइक इस दुनिया में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ एग्जिस्ट करती है, और एक बच्चे के लिए व्हेन इट कम्स लेट इट कम टू अपीयरेंस ही सही, ये हमारे देश में कितने सारे कलर्स हैं, हम सबके पास, यू नो, वी आर सो लकी टू बी सो रिच इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, द नंबर ऑफ ब्यूटीज़ वी हैव, वी शुड एम्ब्रेस दैट। और वो डाइवर्सिटी जो है वो तो अब फिल्में ही आपको दर्शा पाएंगी, और एडवर्टीजमेंट्स, आइकॉन्स जो आपके सामने हैं, जिनसे आप रिलेट कर सकेंगे। तो आज जाके आई एम वेरी प्राउड कि जो चेहरे हमारे सामने, जो स्टार्स हैं, देयर आर सो मैनी जिससे अलग अलग तरह के लोग रिलेट कर पाते हैं। साउथ हैज़ गिवन सो मच स्ट्रेंथ टू सो मैनी काइंड्स ऑफ पीपल। साउथ इंडियन इंडस्ट्री, द नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्री हैज़ इट्स ओन फैन बेस व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ कंटेंट, और अभी तो कितनी वर्सेटैलिटी है। सो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जब तक ऑडियंसेस भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक नहीं। आई फील लाइक जब से वो फिल्म पुष्पा आई है ना, हाउ यू सी हाउ क्रूड द फिल्म वॉज, कितनी नेचुरल थी, एंड उसमें कोई ग्लैमर नहीं था, and yet you loved that movie. So I feel like the more these kind of projects are going to happen, the more stars who are going to come out real, unfiltered, the more people are going to love themselves. और बच्चों के लिए तो ये बहुत important है. I've gone through it. So yeah, not just for child actors but for generally children. ये नहीं होना चाहिए. Everybody is beautiful. Everybody's skin tones. बस ज़्यादा icons नहीं है आपके सामने. So that has to happen. मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने हमेशा यही माना, मेरे डैड हमेशा कहते थे कि नो मैटर व्हाट द सोसाइटी इज़ गोइंग टू टेल यू, रिमेंबर दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू हैव योर ओन ब्यूटी, यू आर योर ओन पैकेज, यू आर गोइंग टू इंस्पायर योर सेट ऑफ पीपल. नॉट अ पर्सन कांट इंस्पायर एवरीवन, यू विल इंस्पायर योर पीपल. एंड ऑडिशंस देते देते पापा ने कहा इफ़ यू आर अ गुड एक्टर यू विल मेक इट, डोंट हैव टू थिंक अबाउट बुक्स. So I did that. I followed my heart. I kept giving auditions, and I remember सात फेरे सीरियल ऑन ZTV, जिसमें सलोनी की कहानी थी. तब उनकी बेटी के ऑडिशंस चल रहे थे, तो मैंने वहाँ ऑडिशन दिया, और वहाँ पे नॉट जस्ट फॉर माई एक्टिंग बट द बेसिस फॉर माई सिलेक्शन वॉज माई स्किन टोन. एंड दैट्स वेयर आई फेल्ट लाइक, मतलब कहाँ मुझे स्किन टोन के लिए रिजेक्ट किया जाता था, और आज मुझे सिर्फ मेरी स्किन टोन के बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है. सो दैट वॉज अ गेम चेंजर for my life, and I felt so happy कि मैं एक main lead child character play कर रही थी in the serial. That gave a lot of boost. So it was that serial also in that time was speaking only about colorism. So that has changed. देखो, मुझे ऐसा लगता है कई कॉन्सेप्ट्स, इफ़ यू वांट टू बिलीव यू कैन बिलीव, बट कुछ चीज़ें कई लोगों के लिए काम करती है. लाइक टिल टुडे, लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु वांट्स टू एडवर्टाइज माई सेल्फ वेरी मच. आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज इफ़ आई बिलीव अगर आप इररिप्लेसेबल हैं, अगर आप में कोई ऐसी बात है जिसका मोनोपोली सिर्फ आपके पास है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. But if you feel like you are in that irreplaceable category, then you either work on something जो आपके पास authentic है, आपका authentic talent या power, या you get into the competition and market yourself and get into that competition. So it's a mix of both. And as an actor in my career, I've had to balance a mix of both. And मैं अपने दिल के साथ compromise नहीं कर पाती. अगर मुझे कोई रोल पसंद है तो मैं करूँगी, अगर मुझे कोई रोल नहीं पसंद है तो I'll try my best to convince myself. I would say I'm simple, but for some it just depends. I like to spend time with my family. I like to play sports. मैं हर हफ्ते मतलब I really look forward to. तो मेरे बचपन से मैं भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ. I am very tomboyish. मेरे बचपन में लड़कियां बहुत कम दोस्त थी, फॉर गॉड नोज वॉट रीजन. या तो मैं बहुत गूफी थी, या मुझे हमेशा थ्रिल पसंद था, एडवेंचर पसंद था. तो स्कूल हो या बिल्डिंग हो, हमेशा मेरा भाई और उसके जो दोस्त थे सभी मेरे दोस्त थे. तो आई बीन अ वेरी रफ टफ गर्ल, विच इज़ वाई मैं हमेशा झांसी की रानी या बन्नी चाओ या काली वाली ऐसे सब स्ट्रॉन्ग रोल्स में कास्ट हुई हूँ. तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. आई लव स्पोर्ट्स,
कुंग फू पसंद है मुझे, आई लव किक बॉक्सिंग, आई लव स्विमिंग, सिंगिंग, आई ट्राइड सिंगिंग ऑल्सो, वेस्टर्न वोकल्स भी सीखा था मैंने, आई लव डांसिंग, मेकिंग फ्रेंड्स। मैं घर पे नहीं रहता, मैं आई एम समबडी हु कांट स्टे एट होम। मैं सिर्फ मम्मी ने खाना पीने के लिए बुलाया तो बट अदरवाइज आई एम ऑलवेज आउटसाइड, सो दैट इज़ मी। आजकल मुझे घर पे रहना भी अच्छा लगता है, या मैं खाना बनाना और सीख रही हूँ। बन्नी चाव में तो आप सब मुझे खाना बनाते हुए देखा है। आई जस्ट वांट टू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग लैंग्वेजेस, लर्निंग कल्चर्स। तो एक्टर हूँ तो मुझे लगता है हमेशा सीखते रहना चाहिए। मुझे भी नहीं पता कहाँ है, मुझे भी नहीं पता। और are you single? That's true. Am I single? The nation wants to know. I don't know. Okay. That's so sweet. Okay, now this is the first time मैं किसी इंटरव्यू में अपने बारे में भी अपना ऐसा ही लिस्ट देने वाली हूँ। तो मैं अपने डिज़ायर्ड पार्टनर में ये खूबियाँ चाहती हूँ कि दिस पर्सन शुड बी रियली इंटेलिजेंट, मुझसे ज़्यादा नहीं मजाक कर रही हूँ, इंटेलिजेंट, ह्यूमर, इंटेग्रिटी, somebody who really wants to do something for the world, spiritual in their own way, but spirituality is a must, to believe in something, to have faith, somebody जो pain endure कर सके और सेल्फ अवेयरनेस हो कि इफ़ थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, अगर अपने पार्ट पे या किसी और के पार्ट पे, पर अवेयरनेस होनी चाहिए। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट अवेयरनेस होनी चाहिए और उसे फिक्स करने की वो क्वालिटी होनी चाहिए। साथ में फेमिनिस्ट होना चाहिए और शुड बिलीव इन 50-50 पार्टनरशिप ऑलवेज एंड 50-50 अकाउंटेबिलिटी, सो थिंग्स लाइक दैट। बाकी तो आई एम अ वेरी 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 फन पर्सन, सो आई विल make sure that there's a lot of spice. Okay, we'll start from Kill. I had a big crush on Ranveer Singh for a lot of years, but जब मैंने सिम्बा की I had to play his sister, तो वहीं पे I was like oh shit, और उनकी शादी हो गई थी। तो yes, for that I'll have to kill Ranveer Singh, but yeah, I love him. He's an amazing person. Coming to date, I think I'll date Tiger Shroff because he's amazing. He's just awesome, yaar. In terms of everything, I really admire this person. He's so athletic and he's such a fighter and a very good actor, very good looker also, very disciplined. And I would love to marry Tom Holland. Yeah, I think he's the cutest, wittiest. He's just so cute and handsome, and he's my Spidey. It's like Spider-Man, Spider-Man, तूने चुराया मेरे दिल का चैन. Yeah. ये हो गए 3 लिस्ट आपके. Yes. Kill Ranveer Singh, date Tiger Shroff, marry Tom Holland. कैन यू इमेजिन, जब मैं सिम्बा का फर्स्ट सीन कर रही थी, मुझे रोहित सर ने उससे पहले इंट्रोड्यूस भी नहीं करा, एकदम हल्के से करवाया था, और उसी दिन मेरा सबसे कॉम्प्लेक्स सीन जो था पूरी फिल्म का, जिसमें जो पूरा 1 टेक होने वाला था, और मेरे बारे में सेट पे सबने ना पता नहीं किसने अफवाह फैला दी थी, शी इज़ अ वेरी सीनियर लाइक एक्ट्रेस, सीनियर मतलब शी इज़ मतलब बहुत, मतलब मैं आज भी मुझे नहीं कहता, वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस, सब है सेट पे, और कैमरा स्टार्ट, हम क्लाइमैक्स के पास से कर रहे हैं, यहाँ मेरे बाजू में रणवीर सिंह बैठे हैं, सारा अली खान इज़ हियर, आशुतोष राणा सर इज़ हियर, और सिद्धार्थ जाधव, ऑल द अमेजिंग एक्टर्स आर इन फ्रंट ऑफ मी। सीरा, और बहुत बड़ा लाइन था, और वो 1 टेक में होना था। वहाँ से मेरे सीन की शुरुआत थी। मैं काफ़ी नर्वस थी, बट आई डिड माई बेस्ट, आई थॉट अबाउट नथिंग, और बस मैंने सीन कर दिया। मैंने रोहित सर से पूछा, सर मैं कैसे करूँ? उसमें उल्का, मुझे पता है तू कर सकती, तू बस कर ले, तेरे को जैसे करना है कर ले। लाइफ में मुझे पहली बार किसी डायरेक्टर ने कुछ कहा नहीं कि तुझे ऐसे करना है, सेट लाइक दिस, वैसे। उसने कहा तुझे जैसा लग रहा है वैसे करना। ही सेड दैट टू मी, एंड एज एन एक्टर आई फेल्ट सो लिबरेटेड। और जब वो मैंने सीन किया, वो 1 टेक में
हो गया था. इट वॉज सो बिग, इट वॉज इमोशनल. मुझे उस सीन में रोना भी था, बातों बातों में कहीं शुरुआत करना था और फिर रोना था. इट इज़ दैट सीन जहाँ पे नंदिनी कहती है अपने भाई से, भैया आज भी अगर लड़कियाँ कहीं अकेले जाती हैं तो डर लगता है, उसके साथ जो हुआ है वो. तो और उसके बाद जब वो कट हुआ है, मैं देख रही थी कि रोहित सर क्या कहेंगे. सब लोग खड़े हो गए सेट पे एंड एवरीबडी वाज अपलॉडिंग फॉर मी. जस्ट इमेजिन मेरे ऊपर क्या बीती होगी. सो दैट वाज माय फर्स्ट डे, फर्स्ट सीन ऑफ सिम्बा. एंड रणवीर सिंह सर वाज सो स्वीट. आई मीन आई स्टिल कॉल हिम रणवीर सर. और उस दिन जब मैं शूट के बाद हम सितारा होटल में थे, उन्होंने मुझे जिम में मिलकर बोला था, यार तुम कब से काम कर रही हो. और मैंने कहा सर मैं ऐसे तुमने कितना अच्छा सीन किया था. और उन्होंने उस दिन मुझे साथ में अपने वर्कआउट करवाया था. आई स्टिल रिमेंबर दैट. एंड सारा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी. सारा उस दिन मुझे बोल रही थी, मैम सच अ गुड सीन. और सब लोग बोलते वो तुझसे छोटी है तो उसे मैम क्यों बोल रही है. लाइक प्लीज़ सारा डोंट कॉल मी मैम. इट्स सो एम्बैरेसिंग. तो बाय फ्लूक मेरा सीन उस दिन अच्छा हो गया, वरना मैं बहुत नर्वस थी. नर्वसनेस मुझे आज भी हमेशा नए सेट पे होती है एंड आई एन्जॉय दैट.